یہ کیا پاگلپن ہے؟ یہ ہماری واپسی کا راستہ تھا۔ انہوں نے بولا تھا ہمیں کہ کشتیاں جلا دو۔ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن۔ اب یا تو فتح ہوگی یا شہادت۔ جیتنے والے تاریخ لکھتے ہیں اور تاریخ ہمیشہ میرا نام لکھے گی۔ سوچو، تم ایک انجان زمین پر کھڑے ہو، سامنے ایک ایسی فوج ہے جو تمہاری گنتی سے 10 گنا بڑی ہے، اور تمہارے پیچھے گہرا بے رحم سمندر ہے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، واپس جانے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جن کشتیوں پر تم اس زمین تک آئے تھے، تمہارے اپنے ہی کمانڈر نے ان کشتیوں کو آگ لگا دی ہے۔ ان کشتیوں کو آگ لگا دو، ابھی کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں، لکڑی جلنے کی آواز سمندر کی لہروں کو دبا رہی ہے۔ تمہارے پاس زندگی بچانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یا تو سامنے والی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑو، یا اس مٹی میں دفن ہو جاؤ۔ ایک آدمی جس کے پاس صرف کچھ ہزار سپاہی تھے، اس نے ایک ایسی ناممکن جنگ لڑی اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 800 سال تک دنیا پر راج کرتی رہی۔ آج میں تمہیں ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو کسی تیز رفتار سسپنس فلم سے کم نہیں۔ یہ کہانی ہے خون کی، دھوکے کی، اور ایک عام سے فوجی کی جو پہاڑ جیسا طاقتور بن گیا۔ یہ زمین تمہاری نہیں، یہاں صرف ہماری مرضی چلتی ہے۔ 8ویں صدی کی شروعات، یورپ کا نظام بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ آج کا اسپین، جسے اس وقت ہسپانیہ کہا جاتا تھا، ایک بڑے عذاب سے گزر رہا تھا۔ وہاں ویزیگوتس کی حکومت تھی۔ انصاف نہیں، صرف ننگا ظلم تھا۔ اسپین کی ہواؤں میں خوف تھا۔ رات کے گھنے اندھیرے میں عام لوگ اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ سلاتے تھے۔ اے میرے خدا، ہم پر سے اس ظلم کو ختم کر۔ جبکہ امیر حکمران محلوں میں جشن مناتے تھے۔ اس تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا تھا، روڈرک۔ روڈرک نے قتل کر کے یہ تخت چھینا تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ آج میرے قلعے میں میری بادشاہت کا جشن منایا جائے گا۔ ناچو! جی بھر کے ناچو سب۔ کھلی شراب ملے گی سب کو۔ اس نے سمجھا اس کی لاکھوں کی فوج کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن گھمنڈ میں انسان سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ روڈرک نے اپنے ہی ایک طاقتور گورنر کو اپنا سب سے خطرناک دشمن بنا لیا، کاؤنٹ جولین۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ روڈرک نے جولین کی جوان بیٹی کے ساتھ محلوں میں شدید بدسلوکی کی تھی۔ تمہارا باپ چاہے جتنا بڑا گورنر کیوں نہ ہو، اس کا بادشاہ تو میں ہی ہوں نا۔ یہی وہ چنگاری تھی جس نے پورے اسپین کے مستقبل کو آگ لگا دینی تھی۔ جولین کے دل میں آگ لگ چکی تھی، خون کھول رہا تھا۔ اسے صرف انتقام چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکیلا وہ روڈرک کی لاکھوں کی فوج کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اسے ایک ایسی باہری طاقت کی مدد چاہیے تھی جو روڈرک کی آنکھوں میں ڈر پیدا کر سکے۔ جولین نے چپکے سے سمندر پار کیا
और नॉर्थ अफ्रीका पहुंचा। वहां मुसलमानों की नई हुकूमत कायम हुई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन। शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुशरक़ी रूमी सुल्तनत के खिलाफ फतह दी। ये सब अल्लाह का करम है जो हमारी मुसलमान सल्तनत यहाँ कायम हो गई। आला गवर्नर था मूसा बिन नसीर। जूलियन ने मूसा को बताया, अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, उम्मीद है आपके पास थोड़ी सी गुफ्तगू का वक्त होगा। स्पेन अंदर से बहुत खोखला हो चुका है और अवाम वहां के बादशाह से बहुत नफरत करती है। अगर आप वहां हमला कर दें तो पूरी अवाम आपका इस्तकबाल करेगी। मूसा बिन नसीर एक ठंडे दिमाग वाला लीडर था। वो जानता था कि ये एक खतरनाक रिस्क है। नए समंदर को पार करना, अनजान जमीन पर कदम रखना, ये मौत के मुंह में जाने वाली बात थी। मूसा को इस अजीम मिशन के लिए एक ऐसे सिपहसालार की जरूरत थी जो निडर हो। उसने दरबार में अपने बेहतरीन कमांडर्स की तरफ देखा। बड़े बड़े अरब सरदार मौजूद थे, लेकिन मूसा की नजर एक ऐसे आदमी पर जाकर रुकी जो अरब नहीं था। वो एक बर्बर था, एक आम सा गुलाम जिसे आजाद किया गया था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से सबके दिलों में जगह बना ली थी। तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बातें कम करता था, लेकिन मैदान जंग में इसकी तलवार दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला देती थी। तारिक, सरबरा मूसा ने आपको अपने दरबार में तलब किया है। तुम जानते हो ये सफर मौत का सफर हो सकता है। जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में हैं। वो समंदर के उस पार की अनजान जमीन है और दुश्मन तुमसे कई गुना ज्यादा है, मगर फिर भी मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तारिक बिन ज़ियाद, तुम इस लश्कर की क़यादत करोगे। साल था 711। मौसम सर्द था। अफ्रीका के समंदरी किनारों पर सिर्फ 7,000 फौजी खड़े थे। सामने गहरा नीला समंदर था और उसके पार धुंध में छुपी हुई मौत। हवा में खामोशी थी। कश्तियों के बंधन खुलने वाले थे। सिपाहियों के दिलों में डर था, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर तारिक की तरफ देखा तो डर कम होने लगा। तारिक किसी चट्टान की तरह पुरसुकून खड़ा था। उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। अल्लाह पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो पूरी हिम्मत के साथ। सफर शुरू हुआ। लकड़ी की बड़ी कश्तियां लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगीं। ठंडी हवा चेहरों से टकरा रही थी। रात का अंधेरा छाने लगा। आसमान पर सितारे थे, लेकिन नजरें आगे घुप अंधेरे पर थीं। कश्तियों के चरचराने की आवाज और ऊंची लहरों का शूर एक अजीब सा सस्पेंस पैदा कर रहा था। हर शख्स सोच रहा था, क्या वापस कभी अपने बच्चों को देख पाएंगे? लेकिन तारिक के जहन में सिर्फ एक ही बात थी, या तो मुकम्मल फतह या बेखौफ शहादत। अगली सुबह समंदर से धुंध छुटी। उनके सामने एक अजीम पहाड़ नजर आया। आसमान से बातें करता हुआ पहाड़ जबल तारिक। कश्तियां साहिल से जा टकराईं। सिपाही अनजाने जमीन पर उतरने लगे। खामोशी में एक हलचल हुई। तारिक अपने घोड़े पर बैठा और एक ऊंची पथरीली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उसने सीधे लफ्जों में कहा, जिन कश्तियों में आए हो उन सब कश्तियों को आग लगा दो, जला डालो इनको।
एक कश्ती भी ना बचे। सिपाहियों को यकीन नहीं आया। ये तो सरासर पागलपन की बात है। ये तो हमारे जिंदा बचने का रास्ता है। अगर जंग हार गए तो भागेंगे कहां? मुकम्मल सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कमांडर की आंखों में आग थी। मशालें जलाई गईं। देखते ही देखते कश्तियां भयानक शूलों में घिर गईं। साहिल पर आग का समंदर बन गया। काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। सिपाहियों के दिलों में बेबसी और मौत का एहसास छा गया। उनकी आखिरी उम्मीद राख बन रही थी। वो इस अनजाने मिट्टी पर कैद हो चुके थे। आग और घबराहट के बीच तारिक आगे बढ़ा। सबकी सहमी हुई नजरें उस पर थीं। उसने तलवार निकाली और उसकी आवाज हवाओं को चीरते हुए गूंज उठी। ऐ मेरे लोगों, अब यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे आगे दुश्मन है और पीछे समंदर। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी तलवारें हैं। अगर बुज़दली दिखाई तो समंदर निगल जाएगा या दुश्मन सर उतार देगा। लेकिन अगर पूरी हिम्मत से जिहाद की तो ये जमीन तुम्हारी होगी। ये अल्फाज थिएटर के नहीं थे। ये मौत के साए में खड़े लोगों के दिलों में आग लगाने का वक्त था। तकरीर ने जादू कर दिया। खौफ बिल्कुल निकल गया। उनकी जगह एक ऐसी भूख ने ले ली जो सिर्फ फतह से मिट सकती थी। उन्होंने तलवारें आसमान की तरफ उठाईं और ऐसी आवाज लगाई जिसने चट्टानों को थड़ा दिया। अब कोई वापसी नहीं थी। खुफिया जासूसों ने बादशाह रोड्रिक को खबर दी। रोड्रिक ने हंसकर इस बात को मजाक समझा। इन भूखे फौजियों को तो मेरे आम सिपाही ही खत्म कर देंगे। लेकिन जब रोड्रिक की शुरुआती फौज तारिक से टकराई तो उनका बुरा हाल हुआ। तारिक की फौज आग की तरह आगे बढ़ रही थी। रोड्रिक की हंसी गायब हो गई। उसने पूरे स्पेन से खतरनाक फौजियों को बुलाया। पूरे स्पेन की फौज को जमा कर दो और इन सबको जहन्नम वासिल कर दो। 1,00,000 सिपाहियों की पहाड़ जैसी फौज, इंसानों और हथियारों का समंदर। जहां तक नजर जाती भाले और शील्ड्स नजर आते। तारिक के पास मदद आने के बाद भी गिनती के सिर्फ 12,000 फौजी थे। एक के मुकाबले 8 दुश्मन। जंग का मैदान तय हुआ। वादी लख की खुली वादी, रात का वक्त। दोनों तरफ आग जल रही थी। रोड्रिक के खेमे में जश्न का माहौल था। शराब, कहकहे और जीत का गुरूर। सुबह होते ही तारिक और उसकी फौज दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरी तरफ तारिक के खेमे में भारी सन्नाटा था। सिर्फ तलवारों को तेज करने की खौफनाक आवाज। सिपाही दुआएं मांग रहे थे। तारिक बिना एक लफ्ज बोले फौजियों के बीच चल रहा था। हवा में एक जानलेवा तनाव था। तूफान से ठीक पहले की खामोशी। सुबह की पहली किरण के साथ बगुल बज गया। वादी लखा की मिट्टी कांपने लगी। रोड्रिक सुनहरे रथ पर मैदान में आया। एक ही झटके में लाखों की फौज ने हमला किया। तलवारों के टकराने की आवाज कानों के पर्दे फाड़ रही थी। धूल इतनी ऊंची उड़ी कि सूरज दिखना बंद हो गया। तारिक के सिपाही मैदान के बीच लोहे की दीवार बनकर खड़े थे। रोड्रिक की फौज लहरों की तरह आती और टकराकर वापस चली जाती। घंटों तक खूनी खेल चलता रहा। मिट्टी लाल हो गई। तारिक की फौज थकने लगी थी। गिनती का फर्क असर दिखा रहा था। लेकिन तारिक वहशी तूफान की तरह सबसे आगे था। तभी इस खूनी मैदान में एक खौफनाक मोड़ आया। रोड्रिक की फौज में अमीर लोग उससे अंदर ही अंदर नफरत करते थे। तारिक और जूलियन ने पहले ही उनसे खुफिया राबिता किया हुआ था। जब रोड्रिक को लगा वो जीतने वाला है, उसके अपने ही पीठ में छुरा घोंप गए।
रोड्रिक के दाएं और बाएं दस्तों में मौजूद हजारों फौजी अचानक मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे। कहां भाग रहे हो तुम लोग? लड़ो! खत्म करो इन भूखे फौजियों को! मेरी फौज का जो सिपाही इस मैदान जंग से भागा, उसका सर मैं खुद कलम करूंगा। दरमियान में रोड्रिक और चंद वफादार अकेले फंस गए। रोड्रिक की बची हुई फौज में भगदड़ मच गई। तारिक ने वक्त जाया नहीं किया। उसने तेज घुड़सवारों को सीधा रोड्रिक के रथ पर हमले का इशारा किया। सबसे खूनी लड़ाई रथ के इर्द गिर्द शुरू हुई। रोड्रिक घबराहट में शानदार रथ छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। भागते हुए तारिक और रोड्रिक का आमना सामना हुआ। कहा जाता है तारिक की तेज तलवार ने रोड्रिक का घमंड हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। बादशाह की मौत की खबर जंगल की आग बन गई। बादशाह रोड्रिक जंग हार चुका है। पागल मत बनो सब, अपनी जान बचाओ और भागो। दुश्मन हथियार फेंककर पहाड़ों की तरफ भागने लगे। मैदान शांत हो चुका था। तारिक अपने घोड़े पर बैठा जोर से हाँफ रहा था। तलवार से खून टपक रहा था। 12,000 इरादे वाले लोगों ने 1,00,000 लोगों की फौज को तबाह कर दिया था। पूरा यूरोप की तारीख बदल चुकी थी। लेकिन तारिक रुका नहीं। कुर्तुबा और टोलीडो जैसे मजबूत शहर पत्तों की तरह उसके कदमों में गिरने लगे। आम आवाम ने मुकाबला करने के बजाय इस्तकबाल किया। तारिक ने जुल्म नहीं, इंसाफ कायम किया। इबादत गाहों को महफूज रखा। जो लोग डर में जी रहे थे उन्हें आज़ादी मिली। बहुत थोड़े अरसे में पूरा स्पेन तारिक के आगे झुक गया। अंदलुस की बुनियाद रख दी गई। आज से तुम सब आजाद हो। तुम पर कोई जुल्म करने वाला बादशाह नहीं। तुम्हें अपनी अपनी इबादत से रोकने वाला कोई नहीं। सरबराह मूसा को खत लिखो और उन्हें बता दो कि स्पेन पर मुसलमान हुकूमत कायम हो चुकी है। मूसा बिन नुसैर हैरान रह गया। वो भी बड़ी फौज लेकर स्पेन आ गया। दोनों कमांडर्स ने मिलकर पूरा स्पेन फतह किया। लेकिन यहां दास्तान एक अजीब और खामोश मोड़ लेती है। तारिक बिन जियाद, जिसने कश्तियां जलाएं और नामुमकिन फतह हासिल की, वो अचानक हिस्ट्री से गायब होने लगता है। दिमिश्क के खलीफा ने मूसा और तारिक दोनों को वापस बुला लिया। ये पैगाम जितना जल्द हो सके स्पेन पहुंचा दो। मूसा और तारिक दोनों को वापस यहां आना होगा। खलीफा को डर था कि ये ताकतवर कमांडर्स अपनी अलग हुकूमत न कायम कर लें। जब तारिक दिमिश्क पहुंचा, कोई शानदार इस्तकबाल नहीं हुआ। जिस आदमी ने दुनिया की तारीख का रुख मोड़ा था, उसे बाकी जिंदगी आम हालात और गुमनामी में गुजारनी पड़ी। तारिक बिन जियाद ने आखिरी सांसें कहाँ लीं? किस हाल में? उसका मज़ार कहाँ है? तारीख मुकम्मल तौर पर खामोश है। सोचो तो कितनी अजीब बात है। एक शख्स समंदर पार करता है, वापस जाने के रास्ते को आग लगाता है, नामुमकिन दुनिया जीत लेता है और फिर वक्त के अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन जब तक इस अजीम चट्टान का नाम जबले तारिक रहेगा, तारिक हमेशा जिंदा रहेगा। उसने सिखाया कि जब इरादे पहाड़ों से मजबूत हों तो न कश्तियों की ज़रूरत होती है और न वापस जाने की। जिंदगी के रास्ते आगे बढ़कर खुद बनाए जाते हैं।